Hi everyone, welcome back to another video, and in today's video I'm going to discuss about the quantum mechanical model of atom. कुछ होते हैं ना favorite topics. This is one of my favorite topic and today I'm going to be discussing this, the quantum mechanical model of atom. So अभी तक हमने कुछ मॉडल ऑफ एटम पढ़े हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड द मॉडल्स एंड व्हाई दे फेल्ड. जैसे हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल एंड the way it failed. Then we studied the Rutherford model and the way it failed. Then we studied the Bohr model and of course why and how it failed. Okay, this is the quantum mechanical model which came right after the Bohr model of atom. तो ऑफ कोर्स सी बात यह है कि कुछ गलतियां रही होंगी बोहर मॉडल ने जो इस मॉडल ने ऑफ कोर्स करेक्ट करी होंगी, है ना. तो दिस इज द मॉडल ऑफ एटम विच इज एक्चुअली स्टिल इन लाइक ह्यूमैनिटी स्टिल वर्किंग ऑन दिस मॉडल. ओके, सो वेल इफ यू मे बी want to get some Nobel prizes, then this is the field you should try on because it's still a very trending field, trust me. So this is the model of atom which we are going to be discussing in today's video. And before starting with this video, I will give you a small heads up. अगर आगे जाके तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना कि यू वॉन्ट टू स्टडी मोर अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और तुम्हें इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट इन द 11th स्टैंडर्ड, दिस इज़ वेरी बेसिक, बट आगे जाके इफ़ यू रीड मोर स्टफ, इफ़ यू रीड मोर बुक्स एंड यू काइंड ऑफ फील दैट मे बी नाउ आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देन माई फ्रेंड यू हाईली मिस्टेकन. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में तुम्हें किसी को भी सब पता हो, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने अजम्पशंस, इतने मैथमेटिक्स, इतना कुछ इन्वॉल्व है इस टॉपिक में दैट इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होलली. ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ इट, यू कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट टोटली एंड इट्स नॉट इवन मेंट टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स समझ लेना इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड देयर इज अ वेरी famous saying by one of the very famous scientists called Richard Feynman that if you think that you have understood quantum mechanics, then you have definitely not understood quantum mechanics. So I hope I have made myself clear about how this topic is so complex. That's why it is one of my favorites because it is beautiful. Basically, you will see the beauty of chemistry by the quantum mechanical model. If you want to see, of course, not in the 11th standard. It's going to be very very simple and typical here. But आगे जाके, if you want to read more about this, I will give you some extra readings if you want to. And that's on that note I will start today's video. So in today's video, of course we have discussed the Bohr model and the Bohr model की कुछ गलतियाँ थी जो कि द फर्स्ट मेन गलती ऑफ बोहर मॉडल वॉज दैट इट कंसिडर्ड द इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल, है ना. Whereas we know and we have discussed in the last video that there was an equation called the de Broglie equation, which is lambda is equal to h upon mv. Okay, this is called the de Broglie equation, and this equation tells us that not only electron but everything in the world is actually dual nature, is having a dual nature. ठीक है, सब कुछ ही dual nature है. आप, मैं, हमारा कप, the one which I am drinking my tea from is also actually is having a dual nature. ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, दुनिया में सब dual nature है. लेकिन फ़र्क क्या है कि as you can see in this equation that lambda is inversely proportional to mass. तो जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लैम्डा कम होगा, यानी कि वेव नेचर कम होगा, है ना. तो दैट्स वाई द थिंग अराउंड अस आर एक्चुअली क्वाइट मैसिव. इनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है तो इनमें हम लोग वेव नेचर को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते, है ना. इतना क्या, बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर पाते. वी डोंट सी आर कप एक्चुअली हैविंग अ वेव नेचर. But when we talk about things as small as that of your electron, जिसका मास है 9.1 into 10 to power minus 31 kg, few, quite a less mass. ठीक है, तो इस लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे चीज़ें काफ़ी अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं, like that of an electron. और यहाँ पे हमारा वेव नेचर also becomes very important. पार्टिकल नेचर तो है ही, बट हियर द वेव नेचर ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. इसलिए यहाँ पे डुअलिटी को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बोहर ने नहीं किया था. दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन वाई इट्स फेल्ड. ठीक है, सेकेंड थिंग वॉज, और सेकेंड मॉडल वॉज, द सेकेंड थिंग वॉज योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
I'm not writing full. It's Heisenberg uncertainty principle. Basically said that delta x into delta v is greater than equal to h upon 4 pi m. इस इक्वेशन का मतलब क्या था कि इफ़ यू गो एंड इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द पोजिशन विच इज़ एक्स एंड द वेलोसिटी और विच इज़ वी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, तो अगर तुम दोनों डिटरमाइन करने चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब देयर इज गोइंग टू बी एन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ यू गोइंग टू फाइंड आउट these two together, right? So of course, since they are in multiplication and their multiplication is equal to a constant, h भी constant है, 4 भी constant है, pi भी constant है, m भी constant है, so of course एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी, है ना. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. तो इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पोजीशन पे. पोजीशन फिर एग्जैक्ट नहीं होगी, काफ़ी गलती होगी उसके अंदर, काफ़ी अनसर्टेनिटी होगी उसके अंदर, राइट. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजिशन तो तुम्हारी वेलोसिटी गलत आएगी या फिर थोड़ी एग्जैक्ट नहीं आएगी या फिर काफ़ी अनसर्टेनिटी आएगी उसके अंदर, है ना. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट सेज दैट फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम inside an atom is not possible. They both will be uncertain when you're finding them out together. ठीक है. सो दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बट बोहर ने तो हमें क्या बोल दिया था? बोहर ने बोल दिया था कि देयर आर एटम्स विच आर प्रेजेंट, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसमें? ऐसे ऑर्बिट्स बोली ना कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ऑर्बिट्स बोल दिया मतलब क्या बोल दिया? ट्राजेक्ट्रीज बता दी, इलेक्ट्रॉन ट्राजेक्ट्रीज डिफाइन कर दी, पाथ डिफाइन कर दिया मतलब, और पाथ डिफाइन कर दिया तो बोल दिया कि पोजीशन पता है हमें, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग. हाइजेनबर्ग तो चीख चीख के बोल रहा है कि पाथ नहीं पता है हमें, वी कैन नॉट फाइंड आउट द पाथ and the velocity together, है ना. गलती तो होगी. So that's why since because of these two main reasons, the de Broglie equation, which is the wave particle duality of electron, and the Heisenberg uncertainty principle, which is the non-existence of any defined orbits inside the atom, are the reasons for the failure of the Bohr model of atom. Clear? पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही गलत बता दिया था. ही टॉक्ड अबाउट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, एंड काफ़ी एनर्जीज उन्होंने हमें, ही गेव अस अ वेरी वेरी करेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट एनर्जी विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज़. एंड ही टोल्ड अस अबाउट द एनर्जी, ही गेव अस अ फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हिज. तो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी होगी, सेकेंड में है तो कितनी एनर्जी होगी, दैट ही गेव अस अ फॉर्मूला फॉर, एंड ऑल्सो फॉर द रेडियस ऑफ your atom, है ना. So all these things were discussed. Now let's see, क्योंकि हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया आफ्टर योर बोहर मॉडल, तो ऑफकोर्स जो भी गलतियाँ थी वो करेक्ट करी होगी बोहर मॉडल ने, सॉरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने, है ना. Let's see how these things were discussed, how these things were solved, okay. And from the next video onwards, we will talk about all about the different orbitals and everything, okay. But in this video we'll only see how these mistakes were approached बाय योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है. सबसे पहली गलती तो हमारी क्या थी? वेव पार्टिकल डुअलिटी कंसिडर नहीं की थी फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके. सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सेज दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली अ वेव एंड अ पार्टिकल. पार्टिकल है इसलिए उसको बोल दिया मैटर, और वेव है इसलिए उसको बोल दिया वेव. सो एटम का नया नाम, इलेक्ट्रॉन का नया नाम था मैटर वेव्स. इलेक्ट्रॉन वर कंसिडर्ड एज मैटर वेव्स बाय योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है. नाउ अब इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को मैटर वेव मान के चल रहे हैं, है ना. तो अब इलेक्ट्रॉन वेव तो है, पर इलेक्ट्रॉन कौन सी वेव है? विच काइंड ऑफ अ वेव इज इलेक्ट्रॉन? दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस, ठीक है. अब हमारे पास देर आर टू काइंड ऑफ वेव विच आई विल शो यू, एंड आई विल शो व्हाई एन इलेक्ट्रॉन इज वन काइंड ऑफ अ वेव एंड नॉट द अदर वन, है ना. तो हमारी ये एक वेव है जो यहाँ पे स्टार्ट होती है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज 1 वेवलेंथ कंप्लीट, दिस इज 2 वेवलेंथ कंप्लीट, दिस इज 3 वेवलेंथ कंप्लीट, एंड दिस इज द 4th वेवलेंथ कंप्लीट नहीं हो पाई और एंडिंग पॉइंट आ गया था, है ना. दिस इज द सेकेंड वन, यहाँ पे 1 वेवलेंथ कंप्लीट, 2 वेवलेंथ कंप्लीट, 3 वेवलेंथ कंप्लीट, एंड देन 4 वेवलेंथ कंप्लीट, और यहाँ पे सब कंप्लीट हुआ है और एंड पॉइंट आया है. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पे हमारे पास जो वेव है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, जैसे देयर इज 1 वेवलेंथ, देन 2 वेवलेंथ, देन 3, एंड देन 3.5 कुछ वेवलेंथ, राइट. दिस काइंड ऑफ वेव इज a different wave, whereas this wave in which we have an integral number of waves which are formed. You can see 1 wave, then 2 wave, then 3 wave, and then finally 4th wave पे the wave ends and there is a ending of the wave, है ना. This kind of wave is called a standing wave, okay. Standing wave मतलब उसके इनिशियल और उसके एंड पॉइंट पे नोड्स होने चाहिए, यानी कि वेव एंड होनी चाहिए
एट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स ही फॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म, यानी कि जो ये वाली है, ये फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? वाई कैन इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉट फॉर्म द अदर वंस? ये इसका आइडिया हमें, अगर तुम बहुत ही क्लोजली देखोगे ना, बहुत जूम करके, तो यू विल फाइंड द रीज़न फॉर दिस वन इन द बोहर मॉडल ऑफ एटम एज वेल, ठीक है। अगर तुम बोहर को याद करो तो बोहर ने एक चीज़ बोली थी। ही सेड दैट देयर इज न्यूक्लियस एंड देयर आर ऑर्बिट्स अराउंड विच योर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ठीक है। ही ऑल्सो सेड कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये हर जगह पे नहीं है, ओनली डिफाइंड रेडियसेस हैं जहाँ पे ऑर्बिट्स अलाउड हैं, और ऐसे हर जगह पे नहीं होंगी, है ना। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, इट कैन नॉट बी हियर समवेयर, इट कैन बी आइदर हियर, इट कैन बी आइदर हियर, और इट कैन आइदर बी हियर, कहीं पे भी नहीं हो सकता, है ना। दैट्स वाई ही टोल्ड दैट एनर्जी वॉज क्वांटाइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ बीच में कहीं पे भी लैंड नहीं कर सकता वो, एक सर्टन पैकेट, एक सर्टन वैल्यू ऑफ एनर्जी ही चाहिए उसको, एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस, और उसकी वजह से ही टॉक्ड अबाउट ओनली क्वांटाइज्ड लेवल्स ऑफ एनर्जी विच आर पॉसिबल इन साइड द एटम, ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो भी यही बोल रहा है कि ये जो डिफाइंड ऑर्बिट्स है ना, जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, बाकी तो जो खाली स्पेसेस हैं वो नॉन अलाउड स्पेसेस हैं, यहाँ पे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये जो डिफाइंड जगहें हैं, ये जगहें वो जगहें हैं जहाँ पे स्टैंडिंग वेव बन पा रही है। स्टैंडिंग वेव मतलब मान लो यहाँ पे ऑर्बिट स्टार्ट हुई तो ऐसे 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 और वेव चली, और फिर यहाँ पे ऐसे एंड भी हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इफ़ लेट्स से अगर यहाँ पे एक ऑर्बिट में बना दो, ठीक है, जो कि है नहीं पर मैं बना दूँ अपनी मर्ज़ी से, तो यहाँ पे अगर वेव ऐसे चलेगी तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव नहीं होगी और यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई दीज स्पेसेस आर नॉट अलाउड, एंड ओनली द स्पेसेस वेयर योर इलेक्ट्रॉन कैन एक्चुअली हैव अ स्टैंडिंग वेव्स आर अलाउड, एंड दोज पॉइंट्स वेयर दी स्टैंडिंग वेव्स आर अलाउड आर ओनली द अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। बट इसको ऑर्बिट नहीं बोलना, क्योंकि ऑर्बिट बोल दिया तो पाथ डिफाइन कर दिया, और पाथ डिफाइन कर दिया तो हाइजेनबर्ग बुरा मान जाएंगे, जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट द अलाउड एनर्जी स्टेट्स, और वो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानना हमने छोड़ दिया और उसको वेव मानना स्टार्ट कर दिया। वेव भी स्टैंडिंग वेव, और वो एक सर्टेन एरिया पे हो सकती है, विच इज़ क्वाइट द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली अलाउड एनर्जी स्टेट इन साइड द एटम, ठीक है। सेकेंड थिंग वॉज योर Heisenberg uncertainty principle, है ना। सो बोहर सेड, एक्चुअली बोहर टॉक्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट्स, जो कि डिफाइंड स्पेसेस हैं, जो कि गलत है, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑर्बिट्स व्हेन टॉकिंग अबाउट एन एटम, बिकॉज हम एक ट्राजेक्टरीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग देयर इज पोजिशन एंड देयर इज वेलोसिटी, h/4πm, ठीक है। सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन of course there is going to be position and there is going to be velocity, और तुम दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इफ़ यू गो एंड फाइंड आउट वन, द अदर विल बी हैविंग अ हायर अनसर्टनिटी, एंड दूसरा पहला एंड वाइस वर्सा बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स वाई scientists knew that this velocity component is very important, क्योंकि velocity अगर हम हाफ mv² करते हैं तो हमें मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और किसी भी सिस्टम के पास दो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक होती है और पोटेंशियल होती है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, एंड एनर्जी फाइंड आउट करने से हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अबाउट द एनर्जेटिक्स, अबाउट द मॉलिकुलर, अबाउट द रिएक्टिविटी। सो दिस कॉम्पोनेंट, दिस वेलोसिटी कॉम्पोनेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटरमाइन करना, यानी कि विद एक्यूरेसी डिटरमाइन करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। विच मीन्स अगर हम इस पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको अगर एक्यूरेटली डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, मतलब ये ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग अ वेरी हाई अनसर्टेनिटी, है ना। दिस कैन नॉट बी, मतलब पोजिशन कैन नॉट बी एग्जैक्ट, ओके। दैट्स वाई दिस मॉडल ऑफ एटम टॉक्स अबाउट ऑर्बिटल्स एंड नॉट ऑर्बिट्स। ये मॉडल ऑफ एटम बात करेगा एक नए वर्ड के बारे में, एक नया चीज़, विच इज़ ऑर्बिटल। Orbital is a space around your nucleus inside an atom which has highest probability of existence of electron, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है वहाँ है, इस वी कैन नॉट टॉक अबाउट, वी कैन नॉट से कि ये इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में। इट इज़ प्रोबेबल टू एग्जिस्ट हियर, इट इज़ प्रोबेबल टू एग्जिस्ट देयर, राइट। सो बिकॉज हम लोग वेलोसिटी को एग्जैक्ट जानना चाह रहे हैं, तो हम पोजिशन को हम लोग
वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक वे में बात करेंगे, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल. एन ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच हैज़ द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब अगर ऑर्बिटल लेट्स से ऐसे शेप का है, इट्स सर्कुलर, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है. इट कैन बी एनी वेयर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, एनी वेयर इट कैन बी. ठीक है, दैट इट इज़. और मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक एटम के अराउंड इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, right? So that's why we talk about only the probabilistic existence of the electron and not the exact existence of the electron. Clear? और ये जो probabilistic existence of electron है, this can exist only inside the orbital, right? In the next video we will talk about different kinds of orbitals with different energies, different shapes, different sizes. Okay, and those are again very very important. But why did we consider orbital instead of orbit? उसको जानना बहुत ज़रूरी था, because हम लोग orbit के बारे में बात तो कर ही नहीं सकते. We cannot talk about the exact space. We can only know the probable place where electron can be, and that is called an orbital. ठीक है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन ही ये है, द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल. क्लियर? So this is how your Bohr model of your quantum mechanical model is able to challenge, not exactly challenge, but is actually able to correct your Bohr model जहाँ जहाँ उसने गलतियाँ करी, right? In the next video we will get a little technical about the various different orbitals that we have, and various different quantum numbers that we have, and we will come to that in a little while. But it was important to discuss all this before we begin all that, because also that is also very technical, है ना? So on that note I will end this video, and if you have any doubts as to what I said in this video or the videos before this one, you can comment down below. And कुछ समझ में आया हो तो यू नो द ड्रिल, एंड नहीं आया हो तो क्वेश्चन पूछो यार, क्यों किससे डर है, किससे डर रहे हो. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.